Hello, in today's video, we are going to solve examples based on the Charpit's method. It is one of the methods used to solve nonlinear partial differential equations of first order. The Charpit's method is a general method to find the complete solution of a first order nonlinear partial differential equation. There are four forms by which we can find the solution to the first order nonlinear PDE, but in some of the equations we are not able to apply any of those standard forms, and at that time we use this Charpit's method. Now suppose, let's say we have the given equation which is f of xyz pq is equal to 0. We can write the auxiliary equations, which are known as the Charpit's equations, as below. So the equations are dx upon fp is equal to dy upon fq is equal to dz upon pfp plus qfq is equal to dp upon minus fx plus pfz equal to dq upon minus fy plus qfz. You'll have to remember this Charpit's equations in order to solve the first order nonlinear PDE using this method. Then once you have written the equations, we'll use this dz is equal to p dx plus q dy, and then we'll integrate it. Let's start with our first example, which is solve px plus qy is equal to pq. Here you can see that we'll not be able to apply any of the standard forms, and so we'll be using the Charpit's method, which says that let f of x, y, z, pq is equal to px plus qy minus pq equal to 0. Now writing the auxiliary equations, which are my Charpit's equations. Dx upon fp is equal to dy upon fq is equal to dz upon pfp plus qfq is equal to dp upon minus fx plus pfz equal to dq upon minus fy plus qfz. What is fp? It is the partial differentiation of the equation with respect to p. So here we have this equation, and writing fp it will be del f upon del p. यहाँ पे दो टर्म्स है जिसमें p आ रहा है, विच इज़ px एंड pq. सो p का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, x विल बी एज इट इज़. देन यहाँ पे pq है, वहाँ पे p का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 एंड q विल बी एज इट इज़. सो fp विल बी इक्वल टू x माइनस q. देन fq मीन्स del f upon del q. So with respect to q, it will be y minus p. Then we have fx, that is with respect to x. When we will differentiate this partial differentiation, we are just having one term. Differentiation of x will be 1 and p will be as it is. So fx is equal to p. And same way for fy, y partial differentiation, it will be 1. q into 1, that is fy will be equal to q. Then fz की बात करें तो del f upon del z, but equation में कहीं पे भी z नहीं है, so fz will be equal to 0. Now we can put these values here, that is dx upon x minus q is equal to dy upon y minus p is equal to dz upon p into fp, that is p into x minus q plus q into fq. q into y minus p is equal to dp upon minus fx प्लस पी एफ जेड. एफ जेड तो ज़ीरो है तो सिर्फ एफ एक्स ही आएगा, एंड डी क्यू अपॉन माइनस एफ आई प्लस क्यू एफ जेड. तो एफ आई है मेरा क्यू एंड एफ जेड इज़ ज़ीरो. सो आई कैन राइट दिस एज डी पी अपॉन माइनस पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस क्यू. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट कंपेयर फ्रैक्शंस. Here the last two fractions will be easy to compare. So we are comparing the last two fractions. So we have dp upon minus p is equal to dq upon minus q. Minus minus will get cancelled.
we can integrate this, and dp upon p, which is log p, dq upon q is log q, plus we'll apply a constant which will be log a. Now on the right hand side, because we are having plus, so log q plus log a is equal to log qa, and left hand side we have log p, so log p is equal to log qa. Removing log from both the sides, p is equal to qa. Now we can substitute this value of p in our given equation. Our equation is px plus qy is equal to pq. In place of p, I am writing qa, so it will be qa x plus qy is equal to aq square. And from this we can find q, which will be, first of all, from left hand side and right hand side we can take q as common, so we'll be left with ax plus y is equal to aq, and from right hand side, taking a in the denominator, we'll have q is equal to ax plus y upon a. Then we had found this p is equal to qa. I'm substituting the value of q here, so we get a will get cancelled and p is equal to ax plus y. Then we have dz is equal to p dx plus q dy. We're having both of the values of p and q. We can substitute that, y plus ax into dx plus ax plus y upon a into dy. Now I'm just taking LCM. For that I'll have to multiply this a on left hand side and with my first term, so it will become a dz is equal to ay dx plus a square x dx plus ax dy plus y dy. I have just opened the brackets. Then a dz is equal to, we can take these two terms together, ay dx plus ax dy, because it is the differentiation of xy, plus a square x dx plus y dy. Now here, as you can see, this is the differentiation of xy multiplied with a into differentiation of xy. Let me write here separately the differentiation of xy, which will be y into dx plus x into dy. Therefore, a dz will be equal to a into differentiation of xy plus a square dx plus y dy. We can integrate this, and on integrating we'll get integration of dz, which will be z, and integration of differentiation of xy will be equal to xy, and a square is a constant. Integrating x, we get x square by 2, and integration of y will be y square by 2. b we have taken as in constant. Az is equal to, taking 2 as LCM, we'll have 2axy plus a square x square plus y square upon 2 plus b. As you can see, ax plus y whole square will be equal to a square x square plus 2axy plus y square. Here we can write this, ax plus y whole square divided by 2 plus b. जब भी आप लोग LCM लोगे तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज़. कांस्टेंट को LCM लेने में कंसिडर नहीं करना है. Hence, this is the complete solution of the given equation. Then let's see another example. Solve x square minus y square into pq minus xy into p square minus q square minus 1 is equal to 0. For this also we'll not be able to use any of the standard forms, and that's why we'll go for the Charpit's method. So we have f of x, y, z, pq is equal to x square minus y square into pq minus xy into p square minus q square minus 1 is equal to 0. Again, we'll write the auxiliary equations, that is our Charpit equations, which are dx upon fp is equal to dy upon fq equal to dz upon pfp plus qfq equal to dp upon minus fx plus pfz equal to dq
upon minus fy plus qfz. Then the same thing, we'll find fp, fq, fx, fy. I'm writing the equation again, which is x square minus y square into pq minus xy into p square minus q square minus 1 equal to 0. fp which is equal to del f upon del p. तो अगर फर्स्ट टर्म को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू p, then it will be p का डिफ्रेंशिएशन will be 1. So we'll have x square minus y square into q. Then सेकेंड टर्म को देखें तो q स्क्वायर का हो जाएगा 0 एंड xy इंटू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा. xy इंटू पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो p स्क्वायर का हो जाएगा 2p. सो इट विल बी 2p xy. देन सेम वे फॉर fq अगर देखें तो फर्स्ट टर्म के लिए होगा q का हो जाएगा 1 एंड विल हैव रिमेनिंग टर्म विच इज़ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी. देन ये सेकेंड टर्म के लिए p स्क्वायर का हो जाएगा 0, xy इंटू क्यू स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विच विल बी 2q xy. देन fx को अगर देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लोग कर रहे हैं तो x स्क्वायर पी क्यू, इसका होगा 2x पी क्यू. फिर दूसरी टर्म में देखेंगे xy इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी 1 एंड विल बी लेफ्ट विथ y इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. देन वी हैव fy दैट इज़ del f अपॉन del y. तो अगर y के रिस्पेक्ट में करें तो फर्स्ट टर्म के लिए हो जाएगा y स्क्वायर इंटू पी क्यू. एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा बट y स्क्वायर इंटू पी क्यू आगे माइनस आएगा माइनस 2y पी क्यू. और दूसरी टर्म के लिए देखें तो एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वाई का हो जाएगा 1 एंड विल हैव एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. Then writing our auxiliary equations which will be dx upon fp. fp is x square minus y square into q minus 2p xy. Then dy upon fq. fq is x square minus y square into p plus 2q xy. Then dz upon pfp plus qfq. p into fp. p को मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो इट विल बी p इंटू क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर एक्स वाई प्लस q इंटू एफ क्यू. अभी एफ क्यू के साथ अगर q मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी q इंटू p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर एक्स वाई. नाउ इफ़ आई ब्रिंग दीज टर्म्स टुगेदर, ये हमें दिख रहा है पी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो हो जाएगा 2pq इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ब्रिंगिंग दीज टू टर्म्स टुगेदर विच विल बी वी कैन टेक 2xy एज कॉमन. सो ब्रैकेट में मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. वी हैव 2pq इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. Then we have dp upon minus fx plus pfz. fz is of course 0 and writing minus of fx. So minus multiply करके लिखते हैं minus 2x pq माइनस माइनस प्लस हो जाएगी दूसरी टर्म y इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. देन dq अपॉन माइनस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस which will be 2ypq plus x into p square minus q square. अभी इन फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, तो हम लोग एक और नया फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं. फॉर दैट विल बी यूजिंग पी क्यू एक्स वाई एज मल्टीप्लायर्स फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शन. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दैट आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फर्स्ट फ्रैक्शन विथ p, second with q, fourth with x and fifth one with y. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये चारों फ्रैक्शंस को मैं ऐड करूँगी, मतलब इनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आई ऐड. तो अभी मैं आपको डिनोमिनेटर ऐड करके दिखा रही हूँ एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट.
So pq into x square minus y square minus 2p square xy plus pq into x square minus y square plus 2q square xy. देन dp के नीचे जो है वो लिखते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर पी क्यू प्लस एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और डी क्यू के नीचे है उसको y से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. इट विल बी 2y स्क्वायर पी क्यू प्लस एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. और अगर एक्सपांड करके लिखूँ ब्रैकेट तो पी स्क्वायर एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर एक्स वाई. बट अभी लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट ओनली, एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. अभी हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं. तो अगर इसको एक्सपांड करके लिखूँगी इट विल बी पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू वाई स्क्वायर. देन दूसरा जो है मेरा दैट इज़ एक्स वाई इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसको एक्सपांड करेंगे तो इट विल बी एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू स्क्वायर. एंड दिस वन एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू स्क्वायर. अभी एज यू कैन सी एक्स वाई क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2x वाई क्यू स्क्वायर, और एक है मेरे पास प्लस 2x वाई क्यू स्क्वायर, मतलब ये हो गया कैंसिल. देन एक्स वाई पी स्क्वायर को देखते हैं तो ये दोनों मिलके बनाएंगे 2x वाई पी स्क्वायर, एंड दिस इज़ आई एम हैविंग माइनस 2x वाई पी स्क्वायर, सो वो भी टर्म्स कैंसिल हो गई. देन लेट्स सी सम अनदर टर्म्स. यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर पी क्यू प्लस एक्स स्क्वायर पी क्यू विच इज़ 2x स्क्वायर पी क्यू, और ये मिल गया मुझे माइनस 2x स्क्वायर पी क्यू, वो भी कैंसिल हो गया. सेम वे वाई स्क्वायर पी क्यू वाई स्क्वायर पी क्यू जो कि होगा माइनस 2y स्क्वायर पी क्यू, और हमारे पास है प्लस 2y स्क्वायर पी क्यू, वी कैन कैंसिल दैट ऑल्सो. इसका मतलब हो जाता है दैट ऑन सॉल्विंग द डिनोमिनेटर we are getting the new fraction which is having the denominator as 0. Now I'll just write here that taking pq xy as multipliers for first, second, fourth and fifth fractions, and denominator as we saw कि जब हम लोगों ने पी क्यू एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रैक्शंस को, और फिर उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को जब ऐड करके देखा तो वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर इज 0. अभी हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर जिसको ऐड करके हम लोग लिख लेते हैं विच इज़ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस एक्स डी पी प्लस वाई डी क्यू अपॉन 0. अभी इसको मैं किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करूँगी तो क्यू की नीचे 0 है, so right hand side will be equal to 0 only. Then x dp plus p dx को साथ में ले लेते हैं एंड y dq plus q dy को साथ में ले लेते हैं. Why? Because differentiation of xp दिख रहा है हमको यहाँ पे एंड differentiation of yq दिख रहा है यहाँ पे. Then when we integrate this तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा xp, सेकेंड टर्म का होगा yq is equal to a constant which will take it as a. तो एक्स पी इज़ इक्वल टू होगा ए माइनस वाई क्यू, तो पी इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स. अभी क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है हमें उसमें हम लोग पी की ये वैल्यू डाल देते हैं. देन वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी की जगह पे होगा ए माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स वाई इंटू पी की जगह पे a माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. देन दोनों ही टर्म्स में से वी कैन टेक a माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स एज कॉमन. कौन सी दोनों टर्म्स है? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स वाई इंटू
a माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये वाली दोनों टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, प्लस मैंने कर दिया एक्स वाई क्यू स्क्वायर को अलग से लिख दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस एक्स वाई क्यू स्क्वायर। अभी इन दोनों टर्म्स में से a माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स अगर कॉमन निकाला तो q हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्यू माइनस क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी x को ले लेते हैं LCM, तो मेरी जो ये दोनों टर्म्स है एक्स वाई क्यू स्क्वायर और 1 वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड विल बी लेफ्ट विथ a माइनस वाई क्यू एक्स स्क्वायर क्यू माइनस क्यू वाई स्क्वायर माइनस वाई ए प्लस वाई स्क्वायर क्यू। दूसरी वाले टर्म का मैंने ब्रैकेट एक्सपांड कर दिया, x मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स राइट हैंड साइड पे होगा, सो इट विल बी 0। देन अगेन आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग बोथ ऑफ दीज ब्रैकेट्स, तो a के साथ सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी एंड देन वाई क्यू के साथ चारों की चारों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, सो विल हैव ए एक्स स्क्वायर क्यू माइनस ए क्यू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए क्यू वाई स्क्वायर। देन वाई क्यू मल्टीप्लाई करेंगे चारों टर्म्स के साथ, सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर क्यू माइनस वाई क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर। अभी एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर प्लस माइनस दोनों है तो वो कट हो गया, देन क्यू स्क्वायर वाई क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर वाई क्यूब कट और ए क्यू वाई स्क्वायर माइनस ए क्यू वाई स्क्वायर भी कट हो गया। सो द टर्म्स दैट आर लेफ्ट आर ए एक्स स्क्वायर क्यू माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए वाई स्क्वायर क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0। ए स्क्वायर वाई को ले लिया राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू कॉमन ले लिया, सो इट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर नीचे लिखे तो इट विल बी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए सिर्फ कॉमन निकाला है नीचे। देन वी हैव p इज इक्वल टू a माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स, LCM अलग कर देते हैं तो a अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स होगा, क्यू की जगह पे जो हमें मिला है वो मैंने डाल दिया। या तो LCM अलग कर सकते हैं या तो फिर 1 अपॉन एक्स को कॉमन ही ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स को कॉमन लेते हैं, a माइनस यहाँ पे हो जाएगा y को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अभी ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है LCM ले लेंगे तो मल्टीप्लाइंग इट विथ a विल गेट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस विच विल बी माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ऊपर डिलीट हो गया मेरा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो विल बी लेफ्ट विथ 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज़ अभी ऊपर से x को अगर कॉमन निकाल लेती हूँ तो x अपॉन एक्स हो जाएगा कट एंड विल बी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Now we are having equation of p as well as q, so we'll have dz is equal to p dx plus q dy, and here we'll just substitute the equations that we have obtained for p and q. So we can write that dz is equal to a square x minus y upon a into x square plus y square into dx plus x plus a square y upon a into x square plus y square into dy. Then अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो a स्क्वायर एक्स है मेरी फर्स्ट टर्म में एंड a स्क्वायर y है सेकेंड टर्म में, उन दोनों को साथ में लेके आता है। पहले तो ले लिया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर LCM, अभी हो जाएगा
a square x dx minus y dx. I'm just multiplying it with dx, and then the second term will multiply with dy. So plus x dy प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई. अभी जैसे मैंने कहा इन दोनों टर्म्स को साथ में लेके आते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई. अगेन एलसीएम अलग कर देते हैं, अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ये दोनों टर्म्स साथ में लेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वी कैन सी दैट नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका डिफ्रेंसिएशन हमको ऊपर दिख रहा है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी कैन राइट इट एज 2x dx प्लस 2y dy. सिर्फ हमारे पास 2 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विल डिवाइड दिस बाय 2, दैट इज़ विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विथ 2. तो हो जाएगा a अपॉन 2. अभी ये जो है, जैसे मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, सो ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है हमको, दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. वही हमने यहाँ पे किया है. देन वी आर हैविंग एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 1 upon a I have taken it as common. Now this is the differentiation of tan inverse y by x. If you are not aware कि ये tan inverse y by x का differentiation कैसे होगा, then I'll create a separate shorts video for it, and also I'll provide the link in description. Now we'll integrate this, and we have z is equal to a by 2 log x square plus y square plus 1 upon a tan inverse y by x, and plus we'll add a constant which is b. So this way this will give us the complete solution of the given equation. So here we have solved 2 examples based on the Charpit's method. If you are solving any other example and you have any doubt, then you can mail me. Don't forget to like the video and subscribe my channel. Thank you.